today we are going to cover up the last category of our essay type, which is cause effect solution, and in other words it is also known as problem solution. So this is again one of the easiest kind of essays. इसमें पैराग्राफ की कोई टेंशन नहीं कि कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं और किस बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखना है, जस्ट जो पूछा है उसके लिए एक डिफरेंट पैराग्राफ बना लो. लाइक बेसिकली दिस काइंड ऑफ essay has two formats. आपको ये इवेल्युएट करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि whether this is problem solution essay or cause effect solution essay. If they are asking you to write the cause, okay, basically the reason for something, then you have to devote your first body paragraph for writing causes there. Or in other words, they are also known as reasons. So next one, if they are asking about the effects also, or what are the repercussions or the results, then you have to devote another paragraph or discussion to the your effect part there. Then in that case, you have to make different body paragraph. Last one is solution. As you know that when solution is in both of the essay types here, so you have to devote a different paragraph for writing your solutions there. It means body paragraph third there. So most of the cases are there that they basically ask you to write cause and solution plus problem and solution. Now this you have to analysis, you have to analyze कि वहाँ पे problem या solution है या फिर cause of action. तो इस ऐसे को लिखने के दो तीन फॉर्मेट होते हैं. लेट मी डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट फॉर्मेट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो भी उन्होंने चीज़ें पूछी हैं, अगर कॉज पूछा है देन कॉज के लिए आप अपना डिफरेंट बॉडी पैराग्राफ बना दो, ठीक है. इफेक्ट के लिए डिफरेंट बना दो. देन सोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए आप अपना थर्ड बॉडी पैराग्राफ बना दो, ठीक है. Otherwise, what other people do, for example, in body paragraph 1, if it is like cause solution essay, then what they do, reason and solution or cause solution, whatever you want to call it, तो वो क्या करते हैं कि एक ही body paragraph में वो उसकी cause plus solution discuss कर देते हैं, and what are the relevant examples related to that, they provide them into the same body paragraph. This is also fine here, but the most preferable method or the format is this one, okay? Because this gives more clarity to the reader, to the examiner. Okay, fine. So that's all. I think the basic things are clear about this one. That आपको evaluate करना है कि cause, effect है, solution है या फिर problems है. फिर उस अकॉर्डिंग आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लो एंड ट्राई करो कि अगर कॉजेज हैं देन उसको एक बॉडी पैराग्राफ में लिखो एंड लाइक ट्राई टू डिवोट ईच पैराग्राफ फॉर द डिस्कशन टू लाइक कैटेगरी हियर. एंड यहाँ पे मेन चीज ध्यान में रखनी होती है. वैसे तो दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी इजी ऐसे, ओके, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्या करते हैं कि कॉज किसी और चीज की दे रही, लाइक कॉजेज और सोल्यूशन का आपस में कोई रिलेवेंस नहीं बन रहा है, ठीक है. जो उन्होंने कॉजेज कोट किए हैं अपने बॉडी पैराग्राफ में, सोल्यूशंस किसी और के बेसिस पे ही दे रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज द मेन थिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैटेगरी हियर. तो आपको अपना ध्यान रखना है कि कॉजेज जो हैं और सोल्यूशन है इनमें प्रॉपर लिंकेज होना. दो यू आर राइटिंग देम इन सेपरेट पैराग्राफ्स, बॉडी पैराग्राफ्स, बट एक प्रॉपर लिंकेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है. जो कॉजेज हैं उससे रिलेटेड ही आप सॉल्यूशन दो. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद आवर मेन डिस्कशन हियर. ये आपकी है स्टेटमेंट आज की. सो मेनी पीपल बिलीव दैट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. What are the most difficult things about learning a foreign language? What is the best way to overcome them? So now you have to analyze. You have to analyze here कि ये cause effect solution है या फिर problem solution, ठीक है. तो फर्स्ट जो उनकी मेन बैकग्राउंड स्टेटमेंट है, दैट इज आवर मेन स्टेटमेंट हियर. दीज आर द क्वेश्चंस टू व्हिच वी हैव टू गिव आंसर. इनके ऊपर तो हमारा आंसर बेस्ड होएगा. तो मेनी पीपल बिलीव दैट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि किसी नॉन नेटिव लैंग्वेज को सीखना इट्स क्वाइट अ हरक्यूलियन टास्क. बहुत ही ज़्यादा, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीबॉडी, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. तो उसका उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं जिसका हमें आंसर देना है. व्हाट आर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स अबाउट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट आर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स. डू यू थिंक दे आर आस्किंग फॉर द रीजंस और कॉजेज? ये तो इफेक्टिव ही नहीं है, ठीक है. सो दिस इज योर प्रॉब्लम सॉल्यूशन. ये आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कि इसका हम फॉर्मेट कैसे लिखेंगे. वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नाउ यू नो दैट कि प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऐसे ही है, ठीक है. तो इसका फॉर्मेट क्या हो गया? एज यूजुअल इंट्रोडक्शन पैराग्राफ तो सेम ही रहेगा. उसमें हमारी जनरल स्टेटमेंट होगी, जैसे आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है. देन आप अपनी जर्नल स्टेटमेंट ऐसे बेस करोगे, या फिर आप बोल सकते हो कि लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है. बेसिकली वी लर्न लैंग्वेजेस फॉर बिकमिंग मोर सोशेबल, मोर कम्युनिकेटिव. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट इट इज इंडिकेशन नाउअडेज दैट अ पर्सन नोज मोर लैंग्वेजेस द मोर सक्सेसफुल ही और शी, ठीक है. तो जनरल स्टेटमेंट वुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक. नेक्स्ट वन इज रीफ्रेजिंग. जो आपको गिवन स्टेटमेंट है उसको खुद की वर्डिंग में आपने दोबारा से रीफ्रेज करना है बाय यूजिंग द सिनोनिम्स, और यू कैन चेंज द सेंटेंस फॉर्म.
नेक्स्ट वन इज योर थीसिस स्टेटमेंट, जिसमें आप अपना बताओगे कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस डिस्कस करने जा रहा हूँ अपने, दिस थिंग यू हैव टू मेंशन इन योर थीसिस स्टेटमेंट स्पेसिफिक, राइट. So your body paragraph 1 will be devoted to discussion of two causes. Here again advantage disadvantage में आपको बोला था कि कभी भी एक एडवांटेज या एक डिसएडवांटेज डिस्कस करना है ना, वहाँ पे एटलीस्ट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस भी जरूरी होती है. सो यहाँ पे भी अगर आप सिर्फ एक कॉज और एक सोल्यूशन डिस्कस करके आओगे देन दिस विल नॉट हेल्प यू टू मीट द वर्ड लिमिट, राइट. तो उतना एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा. देन ट्राई टू मेंशन एटलीस्ट 2 causes. Then if they are asking for you to discuss the effects, then make a separate body paragraph there. But इसमें हमें नहीं पूछा है, then हम body paragraph second बनाएंगे, but उसमें हम solution discuss करेंगे rather than discussing the effects there. तो अगर आपका वो cause वाला है, then आप cause discuss करोगे body paragraph 1 में. But this is your problem solution essay, then यहाँ पे आप problems mention. Okay? तो last paragraph as usual conclusion का ही होगा, जिसमें आप दोनों sides की अपनी समरी दोगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया एंड सॉल्यूशंस को नहीं. ठीक है, तो हमें दोनों साइड्स को थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश करके छोड़ना है समरी में, इसीलिए वो अच्छी समरी. ओके, सो लेट्स चेक आउट इट हाउ वी आर गोइंग टू राइट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हियर. इंट्रोडक्शन कैसे होनी चाहिए वैसे. ओके, इट इज ट्रू दैट एक्वायरिंग न्यू लैंग्वेज स्किल्स इज बाय नो मींस एन इजी टास्क. तो आपको बोला था जनरल स्टेटमेंट या फिर आप इसको रिफ्रेजिंग लेके चल सकते हैं, पैराफ्रेजिंग भी बोल देते हैं कई लोग. नो डिफरेंस हियर, दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताई है या फिर उसके रिगार्डिंग कुछ जनरल बता दिया. तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, लेट्स चेक आउट द यूज ऑफ वोकैबुलरी हियर. बाय नो मींस एन इजी टास्क. कोई भी लैंग्वेज सीखनी किसी भी तरीके से इजी टास्क नहीं है. दिस इज काइंड ऑफ जनरल स्टेटमेंट. द नेक्स्ट वन इज योर language learners might encounter several challenges such as unfamiliar accents or grammar structures in the learning process of a foreign language. However, such difficulties can be tackled by a well-rounded education. So now you can check out here कि यहाँ पे उन्होंने पहले थोड़ा सा जो हमारी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ट्रेंड उसका थोड़ा सा हिंट दिया. ठीक है, मीन्स उन्होंने थीसिस लाइन लिखनी स्टार्ट कर दी यहाँ पे, बिकॉज हमें प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन दोनों वाली साइड पे लेके लिखना था. देन उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा दोनों का हिंट दिया. For example, language learners might encounter several challenges such as unfamiliar accents or grammar structures in the learning process of a foreign language. These are some of the problems here. Now, उन्होंने solution भी यहाँ पे हमें mention कर दिया कि हाँ problem तो है, because this is problem solution में से हमें solution mention करने, then हमने लिख दिया. However, this is a very best technique here. Such difficulties can be tackled by a well-rounded education. So just a hint for a solution. जो हम solution आगे डिस्कस करने वाले हैं उनका एक ओवरऑल व्यू देंगे कि हाँ ये सारी जो प्रॉब्लम है एक वेल राउंडेड एजुकेशन से ही सॉल्व. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर थीसिस स्टेटमेंट. इट शुड बी दैट मच प्रिसाइज, इतनी डायरेक्ट और इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए. ठीक, तभी क्लैरिफिकेशन. नेक्स्ट वन, लेट्स चेक आउट बॉडी पैराग्राफ्स हियर. सो बॉडी पैराग्राफ 1 जिसमें हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस. So when it comes to languages, it is undeniably crucial to get used to a native accent and intonation for effective communication. अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज लाइक इंग्लिश, ठीक है, तो हम जैसे उसमें अपना ही इंटोनेशन या एक्सेंट लगा देते हैं, बट unless we are not good in providing the same intonation as the native speakers are there, तब तक हम उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते. उनका मेन पॉइंट यही है कि अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बताया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है, बट उसका जो मैसेज था सामने वाले को लिसनर को कन्वे नहीं हुआ, समझ नहीं आया, देन वो सिर्फ कम्युनिकेशन थी, इफेक्टिव नहीं. ठीक है, सो अगर आपको अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है देन उसमें प्रॉपर एक्सेंट एंड इंटोनेशन का रोल होता है. nonetheless is again a cohesive device here जो however की जगह पे यूज हुआ है, rather than repeating however again and again, यहाँ पे हमने nonetheless यूज. Picking up an accurate accent can be enormously difficult. अब वो बता रहे हैं कि कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो उसमें एक्सेंट एंड इंटोनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बट उसको पिकअप करना इट्स नॉट एन इजी टास्क. इट कैन बी enormously difficult, स्पेसिफिकली जिनकी नॉन नेटिव लैंग्वेज, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज जो फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं उनकी खुद की नहीं. स्पेशली फॉर एडल्ट लर्नर्स बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी. यहाँ पे एडल्ट पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो चाइल्ड होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट वो किसी भी चीज़ को जल्दी ग्रास्प
बट एडल्ट्स को उसको थोड़ा सा ग्रास्प करने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उनके माइंड में पहले ही बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं एज कम्पेयर टू अ चाइल्ड, अ यंग लर्नर, उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। ठीक है, so if a language learner has an unrecognizable accent and intonation, they would not be understood by native speakers. चलो हमारा तो समझ लेंगे, ठीक, जैसे मैं किसी के साथ इंग्लिश में बात कर रही हूँ, मेरे इंटोनेशन एक्सेंट सही नहीं है, जैसे मैं किसी इंडियन के साथ बात कर रही हूँ, देन वो तो मेरा समझ आएगा। बट अगर मैं किसी नेटिव स्पीकर के साथ बात कर रही हूँ जाके विदाउट प्रॉपर इंटोनेशन एंड एक्सेंट, देन वो मेरी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। सो ऑन टॉप ऑफ दैट, each language has different grammar and typical grammatical sequencing of words. हर एक लाइक लैंग्वेज का अपना ही सिंटेक्स, अपना ही एक पैटर्न। इन कंपेयर हिंदी, पंजाबी, इन तीनों लैंग्वेजेस को हम जानते हैं, आप देख सकते हो कि हर एक लैंग्वेज का अपना डिफरेंट सिंटेक्स, ग्रामर है। जो रूल्स हिंदी और पंजाबी में ग्रामर के अप्लाई होते हैं वो इंग्लिश में नहीं होते। सबसे पहला तो डिफरेंस यही है कि इंग्लिश में हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं एस वी, एंड उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है एस ओ वी आता है। For example and without example, you know कि हमारा जो essay that is incomplete, again हमारा argument ही रह जाएगा अगर हम example नहीं दे रहे हैं, then उसको effective argument बनाने के लिए हमें example देनी पड़ेगी। Okay? The Korean sentences always end with verbs whilst English doesn't, which means that a Korean English learner should consider about the correct order of words. Same वही example उन्होंने दिए कि Korean language के जो sentences होते हैं वो ऑलवेज एंड विद वर्ब्स, वर्ब्स के साथ एंड होते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का एसवीओ होता है, देन उनका भी सेम यही होगा कि वो वर्ब के साथ एंड। एंड जो एक कोरियन बच्चा है या फिर कोरियन लैंग्वेज लर्नर है, उसको इस चीज का बेसिकली ध्यान। ओके, सो दीज वर द प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू दैट। फर्स्ट वन यही है कि आपको प्रॉपर इंटोनेशन और एक्सेंट उसका ग्रास्प करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हो देन नेटिव स्पीकर के साथ कम्युनिकेट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। सेकेंड वन ऑन टॉप ऑफ दैट क्या था कि आपका जो हमेशा हर एक लैंग्वेज का अपने ग्रामेटिकल सिंटेक्स है, पैटर्न, सीक्वेंसिंग हर एक डिफरेंट। दीज आर द टू प्रॉब्लम्स हियर। तो इनके रिगार्डिंग ही हम अपना सोल्यूशन, दीज थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उसके रिगार्डिंग ही सोल्यूशन। ओके, सो डिस्पाइट द अफोरमेंशन्ड डिफिकल्टीज हमने सेकंड वर्ड यूज कर लिया, सिनोनिम यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्रॉब्लम्स हियर। इट इज बिलीव्ड दैट एवरीवन कैन मास्टर अ फॉरेन लैंग्वेज व्हेन अ कपल ऑफ feasible steps are taken. So this feasible word is my personal favorite here. Whenever I pen down any problem solution essay, cause effect solution essay, मैं उसमें कभी भी feasible word लिखना भूलती नहीं। Okay? So feasible means it means something that is viable, और synonyms आपको provide करिए, something that is viable, practical, doable, right? तो हमने किसी को ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं जो प्रैक्टिकल है, वायबल है। हम ऐसे सॉल्यूशन दे दें मतलब कि वो अप्लाई ही नहीं हो सकते, उनको हम एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, देन उनके ऊपर कोई स्टेप भी नहीं हो सकता, देन ऐसे सॉल्यूशन देने का कोई फायदा ही नहीं है। तो हमने सॉल्यूशन ऐसे देने जो फीसिबल हो, इट मीन्स प्रैक्टिकल हो, डूएबल हो, रियलिस्टिक हो और वायबल हो। तो फर्स्टली अब फर्स्ट सोल्यूशन क्या आया हमारा, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग टू स्टार्ट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज एट अ यंग एज। तो उन्होंने क्या बताया था फर्स्ट पॉइंट कि जो एडल्ट्स हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है एज कम्पेयर टू द यंग लर्नर्स किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को ग्रास्प करने में, एम्बाइब करने। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया इसका, उन्होंने सोल्यूशन दिया कि इससे बेटर है कि आप अपनी यंग एज से ही सीखना शुरू कर दो। तो एक यंग जो चाइल्ड होगा उसको खुद तो पता नहीं होगा कि हाँ मैंने यही लैंग्वेज, तो कौन करेगा, उनके टीचर्स उनको प्रोवाइड करेंगे या फिर उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा उनको सिखाएंगे। तो यंग उसका सोल्यूशन की है कि एडल्टहुड में नहीं, हमें यंग एज से ही एक फॉरेन लैंग्वेज जरूर सीखनी। बाय इनकॉर्पोरेटिंग फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम्स इन द प्राइमरी स्कूल करिकुलम, children can easily be exposed to languages of the world and eventually acquire language skills without it. तो ये अब उस पॉइंट की हमारी एक्सप्लेनेशन है, सपोर्टिंग आइडिया। ठीक है, next solution, secondly the government can financially subsidize schools to run student exchange programs that help adolescents to get experiences abroad and make friends overseas while improving their foreign language in a light way. Okay, तो second solution क्या है, for example internships होती हैं। okay? तो सेकेंड सोल्यूशन वो ये दे रहे हैं कि लाइक गवर्नमेंट को स्कूल्स में ऐसी कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए कि जो वहाँ के जो स्टूडेंट है उनका कुछ इंटरेक्शन हो फॉरेन स्टूडेंट के साथ, या फिर कुछ इंटर्नशिप्स और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो
बच्चों को अपॉर्चुनिटी है फॉरेन कंट्रीज को विजिट करने की मिले, वहाँ पे वो विजिट करेंगे, देन उनकी लैंग्वेज. Okay, so these are just some of the solutions that are related to the problems. Okay, so now you can check out the word here, subsidize here. Subsidize means किसी चीज को फाइनेंस करना. आप फाइनेंस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या फिर किसी की फंडिंग करना. बिकॉज जो स्कूल का करिकुलम है, बेसिकली कोई भी स्कूल अपना पर्सनल करिकुलम नहीं चला सकता है, वो खुद अपने सिलेबस नहीं चला सकता है. दैट अथॉरिटी इज देयर. There are some authorities concerned, वो अगर करिकुलम बताएंगे प्रॉपर, एक लिस्ट बनाएंगे, देन वही वो अप्लाई कर सकेंगे अपने करिकुलम में और सिलेबस में. नेक्स्ट वन, लेट्स चेक आउट कि इसका कंक्लूजन कैसे होगा. तो इन कंक्लूजन इट कैन बी डिड्यूस्ड. डिड्यूस वर्ड रिजल्ट के लिए यूज किया जाता है, बेसिकली कंक्लूजन के लिए यूज किया जाता है. That individuals can have difficulties in learning a new language because of different accents and unfamiliar grammar. Okay? तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिया फिर अगेन कि क्या हमारी प्रॉब्लम्स थी, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देम. ओके, नाउ यहाँ पे उन्होंने नेवरदलेस वर्ड यूज किया, दैट इज अगेन द सिनोनिम फॉर हाउएवर. ओके, रादर देन यूजिंग द वर्ड हाउएवर अगेन एंड अगेन, जस्ट ट्राई टू यूज द सिनोनिम्स फॉर देम. पहले आपने यूज किया नॉनलेस, अब आप यूज कर रहे हो नेवरदलेस. बिकॉज हम नेक्स्ट साइड बता रहे हैं. पहले हमने बताया कि हाँ, दीज वर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज. Now हम उसके solution दे रहे हैं. Nevertheless, these problems can be overcome by a good quality of education system financed by governments. तो यहाँ पे हमने सब्सिडी का synonym use किया, that is finance. Right? Now you can check out that problem solution ऐसे कुछ भी difficult नहीं है इसमें, just आपको check out करना कि whether this is cause-based solution or problem solution. उसके बाद जो सेकेंड चीज आपने माइंड में रखनी है, दैट शुड बी कि जो हम सोल्यूशन दे रहे हैं दैट शुड बी रिलेटेड टू कॉजेस. ऐसे नहीं कि कुछ कॉजेस और बता रही है, सोल्यूशन किसी और चीज का दे रही है. देयर इज नो लिंकेज बिटवीन. These are the 2 points that you have to keep in mind. Otherwise, from my side, discussion is over here. If you still have any doubts, you can mention them in the comment box. Okay, and don't forget to watch other parts also of this series because इसमें हमने पूरी full-fledged detailed discussion की है essay writing. Okay. So till then, keep sharing, keep liking and subscribing to SPS University. Till then, stay connected, healthy, and thank you so much.